யோபின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். हम अय्यूब की किताब निकालेंगे, अय्यूब का 9-10, जॉब चैप्टर 9 वर्स 10, ஆண்டவர் என்ன உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார்? 9 वर्स 10. तो अतर्क्य महत् कृत्य अगणित अद्भुत कृत्य करीतो. வாசிப்போம். இங்கிலீஷ்ல வச்சுனே. इंग्लिश में जॉब चैप्टर 9 वर्स 10. Before sun. जॉब चैप्टर 9 वर्स 10. எல்லாரும் வாசிக்கலாம். எல்லாருக்கும் இந்த வாக்குத்தத்தம். நீங்க வந்து அத்தனை பேருக்கு இந்த வாக்குத்தத்தம். ये प्रभु की वादा है और ये सभी के लिए है. तो जिनके भी हाथ में है बाइबल है, सभी लोग पढ़ना है. He does great things past finding out. Yes, wonders without number. எஸ். காட் இன்றைக்கு சொல்றாரு, परमेश्वर आज बता रहा है, உங்களுக்கு சொல்றாரு, இந்த வருஷத்துல आपको देखकर बताता है, கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோட இருக்குமா? इस वर्ष में मतलब इस साल में प्रभु की अनुग्रह आपके साथ அவர் रहे அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்றேன். और वो अद्भुत और चमत्कार करने वाला खुदा है. அல்லேலூயா. हालेलुया. Hallelujah. ஏன்னா பூமியில் உள்ள மக்கள்லாம் அற்புதம் நடந்தாதான் இயேசுவை விசுவாசிப்பாங்க. क्योंकि इस भूमि के इस धरती के लोग ऐसा है, जब उनके लिए कोई चमत्कार होएगा तभी वो प्रभु पे विश्वास करते हैं உங்களை நம்பி எல்லாம் திரும்ப வருவாங்க. और तभी वो लोग भरोसा करके आते हैं. அற்புதம் இல்லை என்ன? யாரு? We cannot understand the great things he does. Yes. And to his miracles there is no end. உங்க வாழ்க்கையில அற்புதங்களும் அதிசயம் நடக்குது. तो हमारे जीवन में चमत्कार और अद्भुत कार्य होने वाला है. எத்தனை பேர் விசுவாசி? कितने विश्वास करते हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமா, நீங்க நடந்தாலே ஒரு அற்புதம் நடக்கும். आप जैसे इधर से निकलेंगे एक चमत्कार होएगा. நீங்க தொட்டாலே ஒரு அற்புதம் நடக்கும். आप कुछ भी हाथ लगा के काम करेंगे उसमें आशीष आएगा, அல்லேலூயா. चमत्कार आएगा. உங்க வேலையெல்லாம் தொட்ட வேலையெல்லாம் ஆசீர்வாதம். आप जो भी काम करेंगे उसमें प्रभु आशीष देगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஏன்னா ஜீவனுள்ள தேவன், क्योंकि वो जीवित खुदा है, அற்புதங்களையும் அதிசயங்களை செய்ற தேவன். अद्भुत और चमत्कार करने वाला அவர் खुदा. ஆச்சரியமான தேவன். वो आश्चर्य कर्म करता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம ஒரு சாதாரண மனுஷன். हम एक साधारण एक मनुष्य है, தேவன் நமக்குள்ள தரா लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर आ गया அற்புதம். अपने आप चमत्कार होएगा. ஆண்டு சொல்றாரு, அற்புதங்களும் அதிசயம் இந்த வாழ்க்கையில இந்த வருஷத்துல நான் செய்ய போறேன். इसके लिए परमेश्वर आपको देखकर बता रहा है, इस साल में मैं तुम्हारे साथ चमत्कार और अद्भुत करने वाला है. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஈசாக்கு அந்த தேசத்துல விதவை தானா கர்த்தர் 100 மடங்கு ஆசீர்வதித்தார். उन सालों में ईसाक ने उधर बोने के लिए खेत में बोने के लिए गया और उसे 100 गुने की आशीष प्रभु ने दी. மக்கள்லாம் பார்த்தாங்களா? அங்க உள்ள மக்கள்லாம் பார்த்தாங்களா? और वहाँ के लोग उसे देखने लगे. அவங்கள பார்த்து சொல்றாங்களா, கர்த்தர் இவன் கூட இருக்கிறார். वो लोग देखकर ही पहचान लिए इसके साथ परमेश्वर है. அல்லேலூயா. हालेलुया. உங்களை பார்க்கும்போது நீங்க செய்யற அற்புதங்களை அதிசயங்களை பார்த்து உங்க கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் எல்லாரும் சொல்லணும். आपको देखते ही लोग कहना है, नहीं इनके साथ परमेश्वर है. எத்தனை விசுவாசம் इसके लिए विश्वास करते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. உங்களை எல்லாம் விசுவாசிப்பாங்க. जब चमत्कार होएगा तभी विश्वास करेंगे सब लोग. அல்லேலூயா. हालेलुया. எகிப்துல வந்து ஜாதுடோட நிறைய இருக்கு செய்திகள். मिस्र देश में, इजिप्ट में जादू मंत्र का चीज बहुत सारा होता है. நிறைய மந்திரவாதி இருப்பாங்க. बहुत लोग जादू करने वाले भी हैं நிறைய அற்புதம் நடக்கும். और बहुत सारा उनसे भी काम होता அங்க है. உள்ள தெய்வங்களை வச்சு நிறைய அற்புதம் செய்வாங்க. वहाँ के मतलब जो भी उन लोग के भगवान मूर्ति जो भी है उसे रख के वो लोग बहुत काम करते हैं. அதை விட பெரிய அற்புதம் செஞ்சாதான் அங்க எல்லா மக்களும் விசுவாசம். अभी वो लोग जो भी करते हैं वो जो चमत्कार है उससे भी एक बड़ी चमत्कार जब करके बताएंगे तभी यकीन करते लोग. அல்லேலூயா. हालेलुया. எகிப்துல நல்ல உணவு கிடைக்கும். इजिप्ट में बहुत अच्छा खाने मिलता है, வெள்ளரிக்காய் பொம்புக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும். बहुत अच्छा खाने के लिए खानदार काकड़ी सब நல்ல कुछ मिलता வெங்காயம் है. கிடைக்கும். अच्छे खानदा रहता है. நல்ல ஆடல் பாட டான்ஸ் நல்ல சுகமான இன்பங்கள் கிடைக்கும். बहुत अच्छा मतलब नाचना गाना गाना एंजॉय करना बहुत एंजॉयमेंट रहता है वहाँ. ஒரு ஆணோ பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும் அவங்க பிடிச்சி போயிடும். कोई भी मतलब अच्छा जवानी लड़का या लड़की कोई भी होने दो, कोई किसी को अगर पसंद आ गया तुरंत उसको उठा के निकाल எப்படி लेके வேணாலும் जाते हैं. வாழலாம். और उधर कैसे भी अपने मन मर्जी से जी सकते हैं. அங்க அந்த ராஜா உத்தரவு. लेकिन एक बार राजा का ऐसा आ गया ஆனா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு கஷ்டமே கிடையாது. और मतलब ऐसे जगह में लोगों को उधर कोई भी तकलीफ नहीं है. பார்வோனுக்கு ஒரே ஒரு अपनी मर्जी காரியம். से जी रहे हैं. பார்வோனுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் என்ன? और फिरौन राजा का एक ही चिंता கடவுளை மட்டும் ஒதுக்கணும். कि परमेश्वर को आराधना करने के लिए ये लोग यहाँ से அது மட்டும் नहीं தான் जाना. பிடிக்காது. அது மட்டும் தான் பிடிக்காது. ये चीज उस फिरौन राजा को पसंद எல்லாம் அந்த नहीं. ஊர்ல இருந்துச்சு. बाकी सब कुछ कर सकते लोग, அந்த ஜனங்க அதனால அழுதாங்க. इसलिए वे लोग रोने लगे. ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு மீட்பர் வேணும்.
हमारे लिए एक उद्धार करता चाहिए। நாங்க எவ்வளவு காலம் இந்த கஷ்டங்களை பார்க்கணும். हम कितने दिन कितने और यही तकलीफ हम जीते रहेंगे। எல்லாம் சாப்பாடு நல்லா கிடைக்கும். हमको खाने के लिए सब मिल रहा है, ठीक है, ஆனா எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா लेकिन हमको एक बड़ी आनंद கடவுளை ஒசிப்பார். वो परमेश्वर को आराधना करने में। அப்படி சொல்லி ஜனங்க பண்ணிட்டாங்க. वैसे बोलकर लोग रोते थे। எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல மட்டும் புடிச்சு போறானே. जो प्रार्थना करने के लिए आता है, जो परमेश्वर को बताने आता है, उसी को पकड़ के जाता நாங்க है। என்ன தப்பு பண்ணோம்? लेकिन हमने गलती क्या பைபிள் की? வாசிக்கக்கூடாது. बोलता है बाइबल नहीं पढ़ना है, ஆராதனை செய்யக்கூடாது. आराधना नहीं करना है। எகிப்து ராஜா इजिप्ट राजा बोलता அந்த है, பார்வோன் फिरौन राजा ரொம்ப கடினமா இருக்கும். बहुत ही ऐसे सबके ऊपर बहुत कठिन होता था। ஆனா ஆண்டவர் பார்த்தாரு. लेकिन परमेश्वर ने देखा எகிப்துல ஒரு ஆராதனை செய்யும். इजिप्ट में जरूर आराधना होना है, என் ஜனங்களை விடுங்க मेरे लोगों को उधर से छुड़ाना அப்படி है। சொல்லி பர்வதத்துல இறங்கி வந்தார். वैसे बोलकर ही परमेश्वर ने सीधा स्वर्ग से उतर आया। இறங்கி வந்து आकर ஒரு முசுக்கில இருக்கிறார். एक कांटे की झाड़ में आके परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए। ஏன் முடுசல்ல இருக்கிறாரு? अभी क्यों उस कांटे पे आकर மலையில दर्शन दिया? நிறைய இடம் இருக்கு. पहाड़ के ऊपर बहुत सारा जगह है, நான் அந்த மலைக்கு போயிருந்தேன். उधर बहुत सारा जगह है। जिधर मूसा को दर्शन मिला था वो जगह पे हमने जाके देखा। அந்த இடத்துல நைட் 12 மணிக்கு போனேன். रात को 12 बजे हमने जाके पहुंचा அங்க 3 மணிக்கு விடிய காலம் போயிடுச்சு. और सुबह के 3 बजे उधर प्रार्थना रहता है। அந்த செங்குத்தான பாறை ஏறி போய் और वो पहाड़ एकदम मतलब चढ़ाई ऐसा ऊंचा है, एकदम ऐसे चढ़ान जैसा, तो उधर से ऊपर चढ़ने का அங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தா वो सब जगह जाके ஒரு देखा। இடம் மட்டும் முழுசடி அப்படியே காலி மாதிரி. एक जगह पे वही वो कांटे का जो झाड़ था, जब भी तो मतलब आग के सामने उतर आया था, वैसे ही वो झाड़ वैसा का वैसे ही है, हाथ में चला। அந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் முழுசடி மாதிரி. और उन्होंने बताया इस जगह में ही मूसा को प्रभु ने दर्शन में आया चलते हुए। அங்கதான் தர்சனம் சொல்றாரு. दर्शन में बताया மோசஸ் मोसेस मोसेस நீ நிக்கிற இடம் பரிசுத்தமானது. जिस भूमि पे जिस जगह पे तू आया है ये स्थान पवित्र है। நான் உன்னை அழைச்சிருக்கேன். मैंने तुझे बुलाया है, என் மக்களுடைய தூக்கம் இருக்கேன். मेरे लोगों की आवाज मैंने सुना। அவங்க பைபிள் வாசிக்க முடியாதவங்களுக்கு பிசாசு கிரியை செய்யும். शैतान ऐसा क्रिया कर रहा है कि वो लोग बाइबल ना पढ़े, ஜெபம் பண்ண முடியாத கிரியை செய்யும். वे लोग प्रार्थना ना करे करके वो रोक रहा है। அவங்களை ஆராதிக்க செய்யும். उनको आराधना करना அதனால है, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தேடு செய்யும். पहले परमेश्वर के राज को खोज करना है। அவங்களை நான் பாலும் தேன் ஓடுற தேசத்துக்கு दूध और मध होने वाली देश में भी उसे ले जाने वाला हूँ। அவங்களை கொண்டு போய் அற்புதங்களை அதிசயம் मैं उन्हें ले जाकर अद्भुत और चमत्कार करने वाला हूँ। தேவனிடத்துல போய் சொல்லு. तू जाके लोगों को बता करके मूसा को बताया। நான் சொன்ன ஆண்டவரே திடீர்னு நீங்க காட்சி கொடுத்தீங்க. मूसा ने बोला प्रभु अभी आप अचानक मुझे दर्शन दिया है, நான் எப்படி போய் ஜனங்களை பேசுவேன்? मैं ये चीज कैसे जाके लोगों को बताऊं? நீ போ நான் அவனோட பேசுறேன். परमेश्वर ने बोला तू आगे जा, मैं उधर बात करूंगा। நான் சொன்னேன் என் வாய் துப்புவாயி வந்து वो बहुत कुछ कहने लगा, बहुत बहाना करने लगा, नहीं मुझसे बात करने नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता है, நான் எப்படி போடுறேன்? मैं कैसे बोलेगा? மோசை துப்புவாயா? क्या मूसे को बोलने नहीं आता? அவன் துப்புவாயா? क्या वो बात नहीं कर सकता है? அவன் இன்ஜினியர் படிச்சவன். इतना कि उसके बारे में ऐसा है वो इंजीनियर तक पढ़ा है। அது இல்லாம எகிப்துல ஒரு ராஜகுமாரிய காதலிச்சான். और इजिप्ट देश में एक राजकुमारी होती थी, उससे उससे प्रेम करता था, லவ் பண்ண. प्रेम करता था। இப்ப ஆண்டு கூப்பிட்டோன்னே अभी परमेश्वर के बुलाने के बाद நான் எப்படி இதெல்லாம் விட்டுறாரு? परमेश्वर को ये बहाना बोल रहा है, बता रहा है मैं कैसे जाऊंगा। நான் சொன்னேன் நீ எல்லாம் சுத்தியா. परमेश्वर ने बोला तू सब कुछ छोड़ के आ जा, உன்னை அழைக்கிறது உண்டு. तुझे जो बुलाया है वो खुदा सच्चा है। அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. मुझे वो बाकी दुनिया का चीज पसंद नहीं है, தேவ ஜனங்களோட போயிரு. मेरे लोगों के साथ तू जाके जुड़ जा। சரியில்லை. उसने ठीक है बोल के आ गया। உங்க நாம என்னன்னு கேட்டா நான் என்ன சொல்றேன்? तो उसने पूछने लगा अगर वे लोग पूछेंगे आपके नाम जो परमेश्वर का नाम क्या है तो मैं क्या बताऊं? மக்கள் எல்லாம் கேட்பாங்கல்ல. क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे, நான் என்ன சொல்றேன்? पूछेंगे, मैं क्या बताऊं? ஆண்டு சொல்றேன். परमेश्वर ने बोला மோசஸ் நீ பயப்பட. मोसेस तू मत डर, நான் உன்னோட இருக்கேன். मैं तेरे साथ है। உங்களுடைய நாம அதிசயம். मेरे नाम आश्चर्य करने वाला அவர் खुदा, அற்புதம் தெரியும். वो अद्भुत करने वाला खुदा। அதாவது இது வந்து சொல்லி இருக்கிறவர் அன்றைக்கு இருந்தவர் இன்னைக்கு இருக்கிறவர். इसलिए तू जाके लोगों को बता मैं जो हूँ உலக தோற்றம் முதல் நான் இருக்கேன். इस दुनिया के शुरू से मैं हूँ, நான் ஆதியும் அந்தமும் मैं आदि से लेकर हूँ, அல்பா ஒமேகா. मैं अल्फा ओमेगा நீ हूँ। ஜனங்களிடத்துல போய் சொல்லு. तू लोगों को जाके நான் தான் बता, உன்னை அழைச்சேன். मैं ही तुझे बुलाया हूँ, அவரை கொண்டு அற்புதங்களை செய்வேன். तुझे रखे चमत्कार मैं ही இப்ப करने वाला ஜனங்களிடத்துல है। போய் சொல்லு. तू लोगों को जाके बता। அன்னைக்கு அழைச்ச ஆண்டவர் இன்னைக்கு அழைக்கிறாங்க. और उस दिन में मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया तब से लेके वो आज तक हमारे साथ भी है। 2024 கத்துக்கொடுங்க. ये 2024 में भी परमेश्वर हमारे साथ है। என்ன பேசுறாரு? कितने विश्वास करते हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया। 26 में 24 26 24 गया 2 साल पहले। 26 में।
அல்லேலூயா. हालेलुया। அன்னைக்கு இருந்தவர் இன்னைக்கு இந்த வருஷம் கூட இருக்கிறார். तो तब से लेके परमेश्वर ये नई साल के अंदर भी हमारे साथ है। எந்த விசுவாசம்? इसलिए साथ करें। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் உடனே அரண்மனைக்கு போனான். मूसा तुरंत वो राजा के महल में गया। ஆதர் எப்படி சொல்றாரு? राजा को இந்த ஜனங்களை ஆராதிக்க விடு. मेरे परमेश्वर के लोग को आराधना करने छोड़ो। அதெல்லாம் விட முடியாது. उसने बोला नहीं छोड़ोगे। இல்லைன்னா தண்ணீர் எல்லாம் ரத்தமா மாறும். अगर तुम नहीं छोड़ते हो पूरे नदी का पानी खून बन என் जाएगा। தேவனை யாரும் ஏற்று பேச முடியாது. परमेश्वर के सामना कोई नहीं कर सकते। அவரை ஏற்றுட்டு ஒருத்தர் கூட உயிரோடு இருந்தது. अब परमेश्वर के खिलाफ उठते हुए कोई जीवित नहीं रहेगा। என் ஜனங்களை நீ அனுப்பியா இல்லையா? मेरे लोगों मेरे प्रजा को तुम अभी का अभी छोड़ दो उसे आराधना करने का। அனுபவப்படி நீ என்ன செய்ய? उसने बोले रहा नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। தப்பார் என்ன செய்யறா? तो मूसा ने बोला देखो मैं क्या करता हूँ। அவளை கொண்டு ஒரே வச்சார். उसने जाके लाठी को उस नदी के पानी में बढ़ा நல்லா ரத்தமாய். पूरा खूनी बन गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। मूसा ने बोला ரத்தமாக்கிட்டீங்களா? தப்பார் எங்க வீட்டுல தண்ணி இருக்கு. राजा बोलता है ठीक है तू इस नदी के पानी को तो बदल दिया है लेकिन मेरे घर पे तो जो महल में पानी பகல் आता ஒரு தண்ணி கொண்டு வா. है उसमें से तो अच्छा ही पानी आता है मैं लेके आता हूँ। அது கொண்டு வந்தான். वो राजा आके बताया। அதிகமாக கொடுத்தாரு. मूसा ने उस पे हाथ रखा அது ரத்தமா. वो भी पानी खून बन गया। அவன் அப்படியே சொம்பட போட்டான். पूरा ऐसे नीचे डाल दिया राजा ने। राजा बोल रहे क्या हो रहा है इतना आश्चर्य करने वाला खुदा है கூட இருக்கு. वो तेरे साथ है। அது மறுபடியும் फिर से बुलाया ये बारी मंदोला लोग கூப்பிட்டு और फिर एक बार राजा ने बोला मैं अभी मेरे जादू वाले लोग को बुलाया है। பாரு அவங்க கோட போடுவாங்க இல்ல பாம்பா वे लोग अपना लाठी को डालेगा वो सांप बन जाएगा नाग बन जाएगा। கோட அப்படி போடு. उसने डाला மந்திரவாதி எல்லாம் போடுறாங்க. उसके जादू वाले लोग ने वो लाठी डाला எல்லாம் பாம்பா. वो सब एक सांप बन के हो गया। எல்லாம் வலுசுறாங்க. सब एक सांप बन के आ गया। ஒண்ணு மோசப்பட்ட. और मूसा ने देखा அவருக்கு கோடி போட்டாங்க. मूसा ने अपनी लाठी को डाला இந்த கோடு பாம்பா மாதிரி. और मूसा की लाठी भी एक नाग बन गया। மோசோட கோடு मूसा का जो பாம்பா மாதிரி लाठी था वो नाग बन गया। மந்திரவாதி கிட்ட இருக்க எல்லா கோடையும் जो जादू वाले लोग का जो लाठी का जो सांप बन गया था वो सभी को खा गया எல்லா பாம்பையும் निकल गया और सभी को उसने पूरा खत्म कर दिया। ஏகப்பா அற்புதம். और वे लोग देखने लगा हाँ ये तो बहुत अद्भुत करने वाला खुदा इसके ஆச்சரியமான साथ தேவனும் கூட. आश्चर्य करने वाला खुदा इसके साथ। 10 வாதைக்கு அப்புறம் அவன் ஜனங்களை 10 लोगों को परमेश्वर ने उसके साथ फिरौन राजा को भेजा उसके बाद उसने भेजा लोगों को। அல்லேலூயா. हालेलुया छुड़ा दिया। அப்படியே ஜனங்க புறப்பட்டு போறாங்க ஆளுங்க. वैसे लोगों उधर से निकले டக்குன்னு மனம் மாறிட்டான் பாரு. जैसे ही लोगों निकल के थोड़े ही दूर गए उतने में इसका मन बदल गया। ஜனங்கள் राजा का मन बदल गया। ஜனங்களை எல்லாம் அனுப்பிட்டு ஆண்டவர் ஆராதிக்க அனுப்பிட்டா. राजा बदल गया। अभी राजा बोलता है अभी लोग तो चले गए हैं இங்க யாரு இப்ப நல்ல வேலை பார்த்து. सब लोग उधर आराधना करने गए हैं तो हमारे लिए कौन है। ஏன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்க எப்போ சுத்தம். क्योंकि इजराइल के लोग जो है हमेशा एकदम सुस्ती से रहते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவங்கள வச்சு பெரிய பெரிய காரியங்கள் சாதிச்சாங்க. क्योंकि उन लोगों को रखते ही ये फिरौन राजा ने बड़े बड़े कामों को करता था। இப்ப யார் இஸ்ராயல்? अभी इजराइल कौन है आज के इजराइल कौन है हम लोग हैं। நம்ம தான் हम ही वो इजराइल ஆவிக்குரிய இஸ்ராயல். आत्मिक का इजराइल। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை விட நம்மள தான் ஆண்டவர் ரொம்ப நேசிக்கிறார். और परमेश्वर बताता है उस इजराइल से ज्यादा हम जो इजराइल बन के हैं ना हमसे ज्यादा प्रेम रखा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதுதானே? ऐसे है ना ஏன்னா அவர் சேனைகள் கர்த்தர். क्योंकि उसका नाम सेनाओं का यहोवा। அல்லேலூயா. ஆச்சரிய அற்புதங்களை செய்கிறார். वो आश्चर्य और अद्भुत करने वाला खुदा। வருஷத்துல உங்களை கொண்டு ஆச்சரிய அற்புதம் செய்கிறார். इस साल में वो आपको रखे आश्चर्य करम और चमत्कार அதை करेगा। பாடுறோம். ऐसे हम गीत गाते हैं சேனாவுக்கா यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களை கொண்டு போய் தான் அற்புதம் செய்கிறார். आपको लेकर ही परमेश्वर चमत्कार अद्भुत करेगा। எது மாதிரி விசுவாசிக்கிறீங்க? के लिए साथ करते हैं। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நீங்க நடந்தாலே ஒரு அற்புதம். आप चल के जाते हैं उधर भी நீங்க चमत्कार கைடு எல்லா வேலையும் जो भी काम करेंगे उसमें भी चमत्कार எப்போ? कभी இந்த வருஷம்
ये साल में ఏదో విశ్వాసం विश्वास करते हैं హల్లెలూయా హల్లెలూయా సొంత వీడ కొడుకున పడతాయి खुद के घर मिलेगा तो जरूर मिलेगा వ్యాధి కూడా మాగన పడతాయి मेरा बीमार जाएगा तो जरूर जाएगा Yes, Lord. అందరూ వ్యాధి కొడుకున పడతాయి अच्छे काम मुझे मिलेगा बोलेंगे तो मिल जाएगा Yes, amen. लेकिन एक बात மாத்தா மாதிரி குழம்பு கூட माता की तरह हमें गड़बड़ नहीं करना எப்ப கிடைக்கும் ஏது கிடைக்கும் कभी मुझे मिलेगा कभी मेरा होएगा काम होएगा ஹalleluya हालेलुया இப்ப நீ விசுவாசி परमेश्वर बता रहा है अभी तो विश्वास कर நாம இப்ப நீ விசுவாசி अभी तो विश्वास कर தேவனுடைய மகிமை परमेश्वर का महिमा है Amen, amen. नहीं, हम 4 साल से इंतजार कर रहे नहीं हो रहा है। நான் எத்தனை போராட்டங்களோட हम कितना समस्या झेल रहे हैं இஸ்ரேல் ஜனங்க காணாத சில இருக்கு 40 வருஷம் பொறுமையா इजराइल के लोग खाना देश के अंदर आने के लिए 40 साल चल के आए ஹalleluya हालेलुया ஆண்டவர் சொன்னா 40 நாள் கிடைக்கணும் परमेश्वर ने पहला बताया था 40 दिन में मिलेगा இந்த ஜனங்க 40 दिन में तुम आएगा முறுமுறுத்தனால ஆண்டவர் சுத்தி அடிக்காரு लेकिन इजराइल के लोग के गुड़गुड़ाने के कारण 40 साल परमेश्वर लंबा रहा ஹalleluya ஹalleluya. நமக்கு காலம் தாமதமாக நம்ம தான் காரணம் अगर हमको होने वाले काम डिले हो रहा है तो उसका कारण भी हम ही हैं। ஹalleluya ஹalleluya. கடவுளுடைய காரியத்துல லேட் ஆகுறதுனால परमेश्वर के विषय में हम लेट करते हैं, इसीलिए எல்லா காரியம் லேட் ஆகும் हमारे काम भी लेट होता है முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை परमेश्वर बताया पहले तो मेरे राज की खोज करो மோசக்கிட்ட ஆண்டு சொன்னாரு मत्ती मूसा को 7:33. बताया था ஆமா ஏய் அவருடைய காதில் எழுத்து விட்டு வா मूसा को बोला तू अपना प्रेमी अपना मेल सबको छोड़ के आ जा எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தா நான் அவனை ஆசிரியர் जब तू सबको छोड़ के आएगा तभी मैं तुझे आशीष நீ देगी இன்ஜினியர் வேலை விட इंजीनियर के काम से நீ जा அந்த ராஜ அரண்மனையில ராஜகுமாரனா இருப்பதை பார்க்கிறோம் राजा के महल में तू राजकुमार बन के रहने से தேவனுடைய अच्छा ஜனங்களோடு பாடு அனுப்பி परमेश्वर के लोग के साथ मिलकर तू सारे चिंता को झेलना है ஹalleluya ஹalleluya. நான் உன்னை கொண்டு போய் அற்புதங்களை செய்யணும் तभी मैं तुझे रख के बड़े काम करेगा எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தான் सब कुछ छोड़ के वो भी आया ஹalleluya
करेंगे। हम लोग को अभी तक प्रीस्ट मिला नहीं था, तो फादर ने बोला अभी प्रीस्ट लास्ट मोमेंट पे किधर देखेंगे। तो फिर टाबोर ने फोन किया तो फादर आ रहे हैं। चर्च हमारी टेस्टमनी थोड़ी डिफरेंट है। मेरी पत्नी सुषमा, जिसको आप शायद कुछ लोग जानते भी हैं, पिछले साल फरवरी के महीने में उसको डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट कैंसर एंड वो एडवांस स्टेज में चला गया था। एडवांस स्टेज का मतलब है कि 34 स्टेज तक पहुंच चुका था। तो जब स्टार्ट किया प्रोसेस, पूरा डायग्नोसिस वगैरह का ट्रीटमेंट वगैरह चालू हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे एक कंडीशन बताई गई कि देखिए, वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे सॉफ्ट कैंसर होता है, जिसमें चांसेस लाइफ डेथ के बहुत कम होते हैं, लेकिन इनके केस में ऐसा है कि शायद परिस्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि फोर्थ स्टेज पे पहुंच चुका है। हम केमोथेरेपी चालू करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब केमो स्टार्ट, जनरली कैंसर में होता है कि पहले सर्जरी होती है, फिर केमो होता है, फिर रेडिएशन होता है। इसके केस में उल्टा होगा, पहले केमोथेरेपी करनी पड़ी, क्योंकि वो जो ट्यूमर था वो इतना बड़ा हो चुका था और अंदर इतना फैल चुका था कि डॉक्टर लोगों ने सर्जरी नहीं करूँगा। अब मैं इसकी चांस नहीं लूँगा। 16 केमो और एक केमो को 8 से 10 घंटे लगते हैं। 8 से 10 घंटे सबसे जो टफेस्ट केमो होता है ना, वो केमो इसका होता है। कम से कम एक केमो को 8 से 10 घंटे लगते थे और उसके बाद में 4 दिन की तकलीफ ऐसी कि ना खाना खाते थे, ना पानी नहीं पीते थे। खाना खाने के बाद तो बहुत दूर थे। 16 केमो और उसमें उसके ब्लड काउंट बहुत कम होते थे। 2 बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने तब भी मुझे कहा था 8वें केमो के बाद में, देखिए इसकी सिचुएशन ऐसी है ना कि चांसेस बहुत कम है। आप परमेश्वर, आप मतलब मैं ट्रीटमेंट चालू रखता हूँ, आप अपनी कोशिश चालू रखिए। हमने परमेश्वर में भरोसा रखा। तकलीफ ऐसी हो गई थी कि हमारे पास पैसा भी नहीं था ट्रीटमेंट करने के। पैसे ऐसे मेरी नौकरी छूट चुकी थी, जो जेब में पैसे थे वो सारे खर्चे हो चुके थे। पैसा जेब में कुछ भी नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करेंगे। एक केमो का खर्चा करीबन 15 से 18 हज़ार का आया। 16 केमो सोचिए, एक केमो का अगर 18 हज़ार खर्चा है, 15 से 18 तो 16 केमो, उसके बाद में सर्जरी और उसके बाद में रेडिएशन, करीबन 12 से 15 लाख रुपया उसमें। लेकिन आज परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने सारे प्रबंध किए और आज वो आपके सामने। सबसे बड़ी बात यही है कि परिस्थिति इतनी विकट हो चुकी थी कि कुछ ऐसा समय आ गया ना कि घर में खाने के लिए भी नहीं, घर में राशन समाप्त हो चुका था। लेकिन एक ही था कि हम सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, सब यही करते थे, परमेश्वर तेरे हाथ में छोड़ दिया, अब तू ही संभालेगा। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे मतलब दर्शन दिया। परमेश्वर, मैं तो परमेश्वर को ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह मैं बहुत बाइबल वगैरह नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन परमेश्वर में मेरे भरोसा था, यीशु मसीह पर भरोसा था और उनको ही हमेशा प्रार्थना करता था कि जो भी करेगा तू ही करेगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ है ही नहीं, हमारा अपना कोई नहीं है। और जिनको जानते थे, पहचानते थे, उन लोगों ने हाथ खींच लिए। जिनके ऊपर भरोसा था, जैसे आपने बोलता कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मदद करेगा, उन्होंने सबसे पहले पीठ दिखाई। जिसके ऊपर भरोसा था, तो मतलब 8-9 महीने हो गए, उन्होंने आके पूछा भी नहीं कि ये जिंदा है कि मर गई है। सोचिए यहाँ तक पहुंच गई परिस्थिति। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ना दर्शन दिया था अप्रैल के महीने कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू मेरे पे भरोसा कर, बस चलते जा। और आज इतना बड़ा चमत्कार है कि ब्रेस्ट कैंसर में जनरली ब्रेस्ट पूरा निकाल देते हैं, 10 से 10 तो कोई रहे, उसका ब्रेस्ट भी नहीं निकाला है, ट्यूमर पूरा निकाल दिया गया है, रेडिएशन हो गया है, फुल्ली रिकवर। मतलब परमेश्वर ने चमत्कार करते रहो। हमें कभी बोलते ना, मैं रात को सुबह उठा, सुबह मेरा दर्द गायब हो गया, चमत्कार उसको नहीं करना, क्योंकि वो चमत्कार नहीं। चमत्कार वो होता है कि आपको सारी तकलीफ से निकाला और उसके बाद में आपको कुछ होने नहीं दिया, वो चमत्कार इसके जीवन में। ब्रदर्स के साथ प्रेयर करने के लिए प्रार्थना में लगातार बने रहे और कुछ नहीं था हमारे पास, सिर्फ प्रार्थना और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊँ, पैसे हम लोग लगता है कि आप पैसे से मेरा बहुत कुछ काम हो जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं था। खाने के हमारे घर में सच्ची में वांदे हो गए थे। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, मेरे हाथ में नौकरी नहीं थी, जितने थोड़े बहुत पैसे तो खत्म हो चुके थे। सिर्फ केमोथेरेपी नहीं, टेस्ट है, रेगुलर टेस्ट होते थे उसके, रेडिएशन है, केमोथेरेपी है, उसके बाद में उसके बहुत सारे छोटे मतलब बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते थे मुझे। सारे प्रबंध परमेश्वर ने किए और समय समय पे किए। जैसे अभी इसको अगर लेके जाना है केमो को, मुझे पैसा भरना है, अगले दिन जाना है, डॉक्टर ने डेट दिया कि आप आ जाओ घर पे। मेरे पास मैं सोच रहा सुबह पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करूँगा, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता था ना कहीं से कोई दोस्त जुगाड़ करके पैसा भेजता, को बोलता था, वो सुबह किसी ने 5,000 भेज दिया, किसी ने 8,000 भेज दिया, ऐसा करके पैसा जमा हो जाता था हर समय। सर्जरी के टाइम पे 2.5 लाख रुपये, डॉक्टर ने 4.5 लाख का सर्जरी का कोटेशन दिया था, 4.5 लाख का। 4.5 लाख में से ट्रस्ट में गया, यहाँ गया, वहाँ गया, सारा बंदोबस्त परमेश्वर ने करके दिया।
भक्ति वेदांता में आप सोचते कितना महंगा हॉस्पिटल है, वहां पर सारा प्रबंध हुआ, सर्जरी हो गई, रेडिएशन, एक रेडिएशन का कीमत 12,000 रुपया, 21 रेडिएशन हो गए। ऐसी हालत थी कि चल नहीं पाती थी, चल नहीं, मतलब यहाँ से बाथरूम जाने को तकलीफ होती थी। आज ये अपने पैरों पर खड़े होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर हमारे को, हम लोग को टेस्ट करता है, हमारी परीक्षा लेता है, और परीक्षा में खरा उतरने का फल दिया है மெயின் என்னன்னா विश्वास। மெயின் என்னன்னா கேன்சர் வியாதி இருக்கு, பண ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஆனா பேரை நிப்பாட்டில முதல்ல வந்து துதிப்பாங்க பாட்டு लेकिन इसमें मेन यही है, कैंसर मतलब बीमार भी है, आप में पैसा भी नहीं, कुछ नहीं है, इतना प्रॉब्लम के बीच में प्रेयर रुका ही नहीं, வெளியே சொல்ல மாட்டேன்। बिल्कुल प्रेयर रुका नहीं। और हाँ, किधर भी तुदी बाहर पार्टी। जाके इन्होंने किधर बताया भी नहीं कि हमको ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये बड़ी हो रहा है, ये इन्होंने छोड़ा नहीं। छोड़ा हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में राशन खत्म हो गया था, एक समय ऐसा आ गया था कि घर में सच में राशन नहीं था, चावल खिचड़ी बना के खाते थे, और इसकी हालत ऐसी होती थी कि घर में तड़का भी नहीं मार पाते थे, मतलब इसको जगह जगह ऐसा होता है कि आदमी को बात सहन नहीं होती, तो हम लोग, मैं और मेरी बेटी ने चाय और पाव खाते थे, ऐसा करके दिन निकला। लेकिन ऐसा होता था ना कि कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाता था राशन का हम लोगों को। मतलब विश्वास कितनी बड़ी चीज है ना, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर ने, और हम लोगों के साथ में कुछ धोखे भी हुए हैं, तो परमेश्वर ने उसका वो दर्शन दिया कि मैं तेरे जीवन से सारे दुख निकाल के ना, जितना तूने खोया है, मुझे परमेश्वर ने अय्यूब का वही दिया कि अय्यूब ने सब कुछ खो दिया था, सब कुछ शैतान ने ले लिया, मगर उसने एक चीज नहीं छोड़ी, वो परमेश्वर में विश्वास, और वही हमने बना के रखा। परमेश्वर ने कहा जितना तूने खोया है ना, उसका 10 गुना मैं तुझे फिर लौटाऊंगा, तेरा विश्वास नहीं छूटना चाहिए। இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஆனா எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது தசமா காணிக்கணும் காட்டுவோம்। तो इतना प्रॉब्लम में भी तो परमेश्वर के लिए बोलो, दसमास बोलो, हम बोलो, उसमें सब एकदम सही से नहीं चला रहते। मैडम। प्रार्थना में भी, और कभी बताए भी नहीं कि घर में ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, घर में हाथ में पैसा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कभी बताए। நல்ல ஃபேமிலி, பஸ் अच्छा family। கிறிஸ்துவ கூட நான் இப்படி பார்த்துக்கிறேன்। हाँ, और अपने क्रिश्चियन में भी हमने इतना स्ट्रांग नहीं देखा, इतना बीमार, इतना आने के बाद भी इतना स्ट्रांग है, ஒரு பிரேயர்ல நிப்பாட்டினது கிடையாது। कभी प्रेयर उन्होंने नहीं छोड़ा। நல்ல प्रे अपने सुबह 3 बजे के प्रे करती है, मैं रात को 2 बजे की नींद खुलती है, मैं 2 बजे बैठ जाता था इसके बाद। और ऐसा नहीं, मुझे बहुत जनरली मैंने मुझे खावा बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी भी मैं सुबह उठ के परमेश्वर के साथ 10 मिनट की प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर सुबह जाना है या जो कुछ भी मेरे पास ही है, आगे चलाने वाला तू ही है, बस तू ही संभालना, रास्ता दिखाना है, बाकी सब मुझे कुछ पता नहीं। मुझे प्रार्थना करनी आती है, और घर में कोई बहुत होली हो या पवित्र हो, क्योंकि हमसे बहुत सारे पाप गलतियाँ होती रहती है। मैं ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत होली हूँ, पवित्र हूँ, मैं गलती नहीं करता, मुझसे गलतियाँ होती है, चिढ़ जाता हूँ, झगड़ा कर लेता हूँ, कई बार दिमाग गर्म होता है, खोपड़ी में अंदर जैसे जा रहा हूँ, कुछ झगड़ा हो गया तो मेरी भी तो बहुत बार डांटती है, लेकिन मेरा दिमाग सरदार दिमाग है, तो मैं सहन करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। लेकिन और मैं एक चीज मैंने बना के रखी, विश्वास करके, और उसका प्रतिफल सच बोलता हूँ, परमेश्वर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आज ये खड़े हैं, उसका एक ही कारण है, वो है विश्वास और प्रार्थना। இதே கைத்தோட வேளாங்கல்ல வந்து அதோட 2 பேர் மைக் கொடுப்பாங்க। अभी यही फेक में ये साल की दिसंबर में आप उधर आके तेलंगाना में आके Yes, आमीन। நல்ல பாட்டு பண்ணுங்க। आप उधर आके गीत सब गा के उसकी आराधना करो। ये दोनों ஆமா, விடாம அப்படியே பாட்டு பண்றாங்க ஒரு பாட்டா। दोनों के अंदर गाना चालू करो बोलेंगे ना, गाना एकदम लाइन से आते रहे, उनका स्तुति बंद ही नहीं हुए, वो प्रभु ने उनके अंदर से वो पूरा डाला ऐसे पूरा पानी से। परमेश्वर हमसे मांगता है कैसे, ऐसा क्योंकि वो बलिदान से या फिर हम लोग, मैंने कितना पैसा दिया या मैंने क्या दिया परमेश्वर को, उसमें कि वही हमको देने वाला है, तो दिखावा करके फायदा ही नहीं है। तो विश्वास, बस विश्वास और प्रार्थना की चीज है, इसमें परमेश्वर हमको परीक्षा भी लेता है और हमको प्रतिफल भी देता है। ஒரு நாள் கூட முடிஞ்சது இல்லை। एक भी मतलब कभी ऐसा बुड़बुड़ा इनके मुंह से नहीं सुना, ऐसे ये ऐसा ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, इतना विश्वास उनका। इसको ये तो शायद तुमको जानते हैं, दासी है परमेश्वर की, इसने 15 साल परमेश्वर की सेवा की है, तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि तुम सेवा की को क्या हुआ, देख तुम लोग इतना परमेश्वर भरोसा करते हो, क्या किया, तुम लोग के पापों का फल है। बोला ठीक है, हमारे पापों का फल है तो ठीक है ना, परमेश्वर दे दिया है वही बचाएगा। तो हम प्रार्थना में लग रहे, हमने कभी कुछ बोला नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे अगर हमने पाप किया उसका प्रतिफल है, चलेगा। अगर पापों का प्रतिफल दे रहा तो पुण्य का भी तो परमेश्वर देगा ना, तो वो याद सामने खड़ा किया परमेश्वर। ये इससे बड़ा गवाही और कुछ नहीं होता। मैं वो बोलते कि मैं रात को सोया था, मेरा दस्त में ठीक हो गया,
मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा चमत्कार उसको बोलते नहीं चमत्कार बोलता है जब आप सारा प्रोसेस कंप्लीट करो और फिर आप अपने पैरों पे खड़े हो और वो मेरे को ये इसलिए अच्छा लगता है पूरे पैरों पे अपने आज खड़ी है परमेश्वर का अभी पूरा का पूरा प्रार्थना अगर सब पूरे 3 बजे उठ के प्रार्थना करती है मेरे से बहुत होली है मैं तो बिल्कुल नहीं मैं तो सरदार मेरा दिमाग भी थोड़ा गर्म ही रहता है एक चीज है प्रार्थना बना के रखिए प्रार्थना और विश्वास बना के रखिए और कुछ नहीं। चलो कहीं लेट ही जाओ हम सभी अभी थोड़ा हाथ भी बढ़ा के उसके और भी प्रे करेंगे बेबी आश्री करो कि मेरी बेटी को भी आशीष आना है ताकि वो प्रभु ऊंचा करना है सिस्टर करो ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಬೇಕು பயன்படுத்த நான் இயேசு கிறிஸ்து செய்த அநேக அற்புதங்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிற மாட்டோம் இன்னும் ஆண்டவரே ஆசிரங்கள் ஆண்டவரே நிரப்புங்க ஆசிரியை பலப்படுத்துங்க இயேசு இன்னும் அதிக ஆசை கொடுத்தாரு और बहुत ब्लेसिंग आने वाला है Amen.